So, okay, so I will not briefly, I will not describe in detail the mantra rock dance. Much detail is given in the book. So I will just briefly describe it because this is the last session and we have 10 years to cover. So let's start. So Mantra Rock Dance program was held at Avalon Ballroom, and Avalon Ballroom was the venue, and it was attended by 4,000 people. 4,000 people, mainly youngsters, were only there, and Prabhupada's disciple Mukunda and Janki had already, preached and publicized uh, much about Prabhupada, and we also discussed that when Prabhupada arrived at San Francisco airport, many reporters were there, and he was also, he was also reciprocating with the devotees at the airport, and when he sat in the car, how he was reciprocating, receiving garlands from the devotees and distributing the garlands, and all sorts of reciprocation was going on. Then he came to the temple in San Francisco, the center in San Francisco, and he had prasadam and he took rest. So the Mantra Rock dance was attended by 4,000 people, and different kinds of musician bands were already booked for the program, and the the program managers, the owners of Avenue Hall, Avalon Hall Ballroom, told Prabhupada that most of the money will go for your donation for preaching work, but you will have to pay the minimum registration fee and other security fee and things like that. And then the earning for that could be done by charging all the attendees of the Mantra Rock dance program, Mantra Rock music program, like a $2.50 fee per person. So it is like, and he said, and the it was said that all the musician bands will charge you like $250 each. So there were different musician bands which were booked for Prabhupada. So this way funds were raised, and uh, it was a big, huge success program. uh, उसमें लाइट शो भी उन्होंने मुकुंद प्रभु जी ने ऑर्गेनाइज किया था. लाइट शो में what happened was Krishna's pictures were projected on the wall, and the Harinam was projected on the wall. So all the youngsters can sing and dance, and the program went on till midnight, and like that, it was a big success. So before Prabhupada's arrival at the Avalon Ballroom, the disciples were already doing kirtan, but Prabhupada arrived at 9:30, and he did kirtan and he danced also in the kirtan. It is mentioned in the book that people were enthusiastically chanting, and Prabhupada also was very happy to see the good response, and he danced in the kirtan, and but he could see that all the audience, all the youngsters who attended the program were highly intoxicated. So, nevertheless, Prabhupada was happy that at least somehow they are chanting, somehow they are engaging in Krishna consciousness, even though the every person in the audience was intoxicated. So Allen Ginsberg was also there. So when Swamiji came to the program in the Avalon Ballroom venue, Allen Ginsberg introduced who Prabhupada was and how he was connected to Prabhupada, and he also spoke about the Hare Krishna Maha Mantra. So Prabhupada very cleverly, he told Alan Ginsberg कि आप शुरू करो,
आप हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में बात करो, बिकॉज प्रभुपाद अंडरस्टूड दैट दीज पीपल आर सो हाईली इंटॉक्सिकेटेड कि मैं कुछ बोलूंगा तो इनको समझेगा नहीं. तो he bought Allen Ginsberg. Allen Ginsberg, as we earlier discussed, he was a big celebrity among the hippies, right? So, Allen Ginsberg also mentioned कि स्वामी जी का जो अर्ली मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग होता है, वो बहुत अच्छा होता है. तो यू शुड कम एट दी फ्रेडरिक स्ट्रीट टेम्पल, हेट एशबरी. एड्रेस भी दिया, एंड बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था. एंड ऐसा ही हुआ. द नेक्स्ट मॉर्निंग, because of Alan Ginsberg's announcement, many intoxicated people from the audience of last night stumbled upon in the temple and met Swamiji and attended the kirtan. So, like this, it was a big success. And then 2.5 months Prabhupada was in San Francisco, and San Francisco में उन्होंने फूड फॉर लाइफ भी कंटिन्यू किया, जो सबको प्रसादम खिलाते थे वो. And it is described that for 200 people, like खाना बनता था रेगुलर अटेंडीज के लिए, टेम्पल में रहने वाले डिवोटीज के लिए, सर्विटर्स के लिए, और ट्रेसपासर्स के लिए. ऐसे करके 200 लोगों के लिए खाना बनता था. और सैन फ्रांसिस्को के टेम्पल का लंच बहुत फेमस हो गया. अ, तो वहां पे फिर यू रिमेम्बर, लाइक जो सेकेंड सेशन था हमारा, उसमें हमने डिस्क्राइब किया था, जब हम चाइल्डहुड पास टाइम ऑफ जगन्नाथ रथ यात्रा डिस्कस कर रहे थे प्रभुपाद का. तो हमने डिस्कस किया यस था यस, कि आई रिमेम्बर या. कि सॉरी. नेबरहुड की सारी या, माता जी यूज्ड टू कुक. नो, नेबरहुड के सारे माता जी यूज टू गो, दैट इज करेक्ट. बट एक चीज ये भी है कि हमने डिस्कस किया था कि जैसे चाइल्डहुड में उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रोग्राम किया, वैसे ही वेस्ट में हुआ. यू रिमेम्बर, मैंने डिस्कस किया था कि स्वामी जी के एक डिसाइपल माता जी एक दिन मॉल में गए और वहां से जगन्नाथ का एक छोटा सा विग्रह लेके आए. तो स्वामी जी ने उनको बोला कि आप जगन्नाथ के साथ और भी है, सुभद्रा और बलदेव भी है, और दो डेटीज होंगे छोटे छोटे, वो भी लेके आओ. तो ऐसे करके उनको पहली बार आइडिया आया था कि मतलब जगन्नाथ रथ यात्रा वेस्ट में भी करना चाहिए. तो वही हुआ जब 2 ढाई महीने ऐसे रहे सैन फ्रांसिस्को में. एंड देन ही थॉट ऑफ लाइक, ये चीज तब हुई कि आई थिंक वो दैट माता जी went to one of the malls, एंड वहां पे उन्होंने जगन्नाथ की डेटीज देखी. तो जगन्नाथ की डेटी को लाके प्रभुपाद के सामने जब उन्होंने रखा, तो प्रभुपाद भी हैरान हो गए कि जगन्नाथ की डेटी यहाँ पे कैसे. एंड देन ही डिस्क्राइब पूरा जगन्नाथ का लीला. एंड देन ही टोल्ड मालती माता जी टू काइंड ऑफ bring the other two deities. And then he instructed Malati Mataji's husband Shama Sundar Prabhu to like paint the, क्या बोलते हैं, रथास, and make similar more deities. And उन्होंने पूछा कि यहाँ पे कार्विंग की सर्विस कौन अच्छे से ले सकता है. तो श्याम सुंदर प्रभु ने बोला कि मुझे कार्विंग आती है, तो मैं कर सकता हूँ. तो श्याम सुंदर प्रभु ने ही जगन्नाथ बलदेव व सुभद्रा के और भी डेटीज कार्व किए, और रथ भी कार्व किया. और प्रभुपाद ने उनको आइडिया भी दिया कि उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में बहुत सारे जो है ट्रक्स देखे हैं अलग तरह के. तो उन ट्रक्स को यूज करके रथ बनाए जा सकते हैं. एंड दिस इज हाउ यू कैन दिस इज हाउ यू कैन कंडक्ट लाइक सक्सेसफुल रथ यात्रा. बिकॉज प्रभुपाद मेंशन कि हमारा जो इस्कॉन का ये इस्कॉन का मोटिव है कि लोगों को वैकुंठ का एक्सपीरियंस देना.
like we have to give the crowd the experience of Vaikuntha. We should give them. तो ऐसे प्रभुपाद ने बोला कि ऐसे फेस्टिवल्स कंडक्ट करके ही हम जनरल पीपल को वैकुंठ का एक्सपीरियंस दे सकते हैं, so that they very willingly they connect to our movement and they preach about it more and more. तो ऐसे करके जब सैन फ्रांसिस्को से जाने का टाइम आया प्रभुपाद का, तो तो सारे डिवोटीज बहुत उदास थे, जैसे कि हमने न्यूयॉर्क में भी चर्चा किया था। जब न्यूयॉर्क छोड़ के प्रभुपाद पहली बार सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे तो डिवोटीज बहुत उदास थे। वैसा ही कुछ सीन सैन फ्रांसिस्को में भी हुआ। बट प्रभुपाद प्रॉमिस देम कि अगर आप एक सक्सेसफुल रथ यात्रा का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो आई विल डेफिनेटली कम बैक टू सैन फ्रांसिस्को टू पार्टिसिपेट इन द रथ यात्रा प्रोग्राम। एंड उस टाइम पे क्या था कि मतलब लोगों को ऐसा लगता था, क्योंकि लोग समझ गए थे, जो फॉलोवर्स और जो डिसाइपल्स थे वो लोग समझ गए थे कि प्रभुपाद एक जगह पे स्टेशनरी नहीं रहने वाले। एंड प्रभुपाद का हेल्थ अंदर से थोड़ा ठीक नहीं था, बट बाहर से वो बहुत ही चर्पी और बहुत लाइवली दिखते थे प्रभुपाद। तो किसी को पता नहीं चलता था कि प्रभुपाद की हेल्थ ठीक नहीं है। बट जब सैन फ्रांसिस्को से जाने लगे तो सबको लगा कि यार वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि प्रभुपाद का प्लान्स कुछ ऐसे बनते थे कि कभी उनका डिस्कशन चलता था दैट ही शुड गो टू इंडिया, कभी उनका डिस्कशन चलता था कि ही शुड गो लाइक टू मॉन्ट्रियल कनाडा, क्योंकि वहां से भी इनविटेशन था। तो अलग 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 जगह पे जाने का डिस्कशन चलता था, तो वो वहां से सैन फ्रांसिस्को से एक्चुअली इंडिया जाने का उनका बन गया। क्योंकि क्योंकि फिर किसी को भी नहीं पता था कि एक्चुअली अंदर से प्रभुपाद इज नॉट फीलिंग वेल। अंदर से उनको थोड़ा ये अ, अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद के मन में आया कि जो इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है, स्पेशली वृंदावन का, वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत सही रहेगा और वहां जाके उनकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। तो वो इंडिया के लिए जाने लगे। तो सबको लगा कि अगर इंडिया चले जाएंगे तो वापस ही नहीं आएंगे शायद। तो कुछ डिसाइपल्स ने हिम्मत करके बोला कि अगर आप वापस नहीं आए तो आपका आपके जो कोई गुरु भाई हैं, गॉड ब्रदर, उनको आप भेज दीजिए। कि आप नहीं तो आपके कोई गॉड ब्रदर ही हमें टू मोटिवेट अस समबडी शुड बी देयर। तो ऐसे करके उन्होंने बोला। बट प्रभुपाद ने उस विचार के बारे में सोचा, बट उनको उतना ठीक भी लगा और नहीं भी लगा कि टू रिप्लेस योर स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट अ गुड आइडिया, राइट? Is like a disrespect to the spiritual master to think of replacing the spiritual master। तो ऐसे करके प्रभुपाद वेंट टू इंडिया। लेकिन उससे पहले प्रभुपाद की हेल्थ थोड़ी खराब हुई या जो भी था। तो उसकी वजह से डिसाइपल सोचने लगे प्रभुपाद के कि हॉस्पिटल लेके जाएं कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए। तो अल्टीमेटली गुरुदास प्रभु और ब्रह्मानंद प्रभु सब मिलके और भी डिसाइपल्स मिलके दे टुक प्रभुपाद टू द हॉस्पिटल। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, प्रभुपाद का वहां पे थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, सब हुआ। एंड कुछ इंजेक्शंस वगैरह देने थे। तो एक टाइम के बाद प्रभुपाद ने बोला कि नो मोर इंजेक्शंस। तो सॉरी, गर्ग मुनि प्रभु ने फिर उनको लेके जाने लगे हॉस्पिटल से। तो नर्स ने आके बोला कि ही हैज टू बी टेकन टू द एक्सरे रूम। तो लेकिन उन्होंने नर्स को बोला कि ही इज नॉट विलिंग टू टेक एनी मोर इंजेक्शन। ऐसे कर करके अगेंस्ट द विल ऑफ द डॉक्टर्स, Garg Muni and other disciples took प्रभुपाद आउट ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से निकाल के ले गए। तो और डॉक्टर्स भी बोलने लगे कि अगर प्रभुपाद को कुछ हो गया देन यू विल बी लाइक
यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, राइट? तो क्योंकि इनकी हेल्थ नहीं है, अभी बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसे बोला था डॉक्टर्स ने। बट फिर भी डिसाइपल्स जो थे वो प्रभुपाद के बात मान के उनको ले गए। तो प्रभुपाद ने फिर वहां से इंडिया जाने की इच्छा प्रकट की। तो इंडिया में उन्होंने ये सोचा था कि वृंदावन जाके वो कीर्तानंद महाराज को इनिशिएशन देंगे। तो कीर्तानंद महाराज और अच्युतानंद महाराज उस टाइम पे इनिशिएशन नहीं हुआ था, पर वो दोनों प्रभुपाद के डिसाइपल्स, दे वेंट टू इंडिया विद प्रभुपाद। एंड फिर वृंदावन देखा उन्होंने, और प्रभुपाद ने बहुत सारा अच्छा अपना सक्सेस भी डिस्क्राइब किया अपने गॉड ब्रदर्स को कि मैं को इतना सक्सेस मिला 2 साल में वहां पे। And while reaching, like, while he was on the way to reach, like, the राधा दामोदर मंदिर, जहाँ पे उनका रूम था, उनके क्वार्टर्स थे। तो वो रास्ते में जाते जाते ऐसे कार में बैठे बैठे सोच रहे थे कि इंडिया में तो लोगों को, लाइक, विश्वास दिलाना ही मुश्किल हो जाता है कि कृष्ण भगवान है। बट एक्चुअली वेस्ट में लोग आसानी से मान भी लेते हैं, बट वेस्ट जो है थोड़ा मुश्किल है। लाइक, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो लोग चैंटिंग में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो 4-5 महीने मतलब रहे वृंदावन में। आई थिंक सितंबर तक रहे वो वृंदावन में, सितंबर 1967 तक वृंदावन में रहे। और प्रभुपाद हमेशा बोलते थे अपने डिसाइपल्स को कि कभी भी अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए तो मतलब मुझे डॉक्टर के पास मत लेके जाना, जस्ट चैंट फॉर मी एंड जस्ट गिव अ मसाज ऑन माय चेस्ट। तो ऐसे करके उनका ये हुआ। देन 70s में बहुत कुछ हुआ। सो आई विल नॉट, लाइक, precisely describe each and every year. I will just sum up the 10-year thing and then uh, say it. तो ऐसे करके, लाइक, 1970s तक uh, Prabhupada's disciples were preaching in different corners of the world. So, like, by now, there's one important point to discuss over here is that by now, Prabhupada had made the disciples understood that uh, उनको सिर्फ प्रभुपाद के भरोसे नहीं रहना है। एक्चुअली प्रभुपाद उनको कृष्ण को सौंपने आए थे। तो उनको कृष्ण के संरक्षण में डाल के, कृष्ण की भक्ति में डाल के, प्रभुपाद हैड टू ट्रैवल द ग्लोब। इट्स लाइक उनका उनका मिशन था ये। So when the disciples expressed, disagreement or concern, or they were upset about Prabhupada traveling back and forth, or not staying in San Francisco, not staying in New York, and going back and forth, traveling again and again. So Prabhupada told his disciples कि आई हैव गिव, लाइक, जितना मैंने आपको नॉलेज दिया है, जितना मैंने आपको कृष्णा के शरण में डाला है, और जो मेरे बुक्स है, इफ यू, लाइक, रेगुलरली स्टडी देम, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर यू टू टू स्टे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इन माय एब्सेंस और इन माय प्रेजेंस, रिगार्डलेस, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आई फील दैट आई हैव सफिशिएंटली equipped you with the with the shelter in Krishna consciousness. तो वहां पे भी, लाइक, इंडिया जाने से पहले भी जब लोगों को एड्रेस किया न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को से आके, तो सबको लग रहा था कि अरे यार, मतलब शायद दिस इज द लास्ट टाइम वी आर सीइंग स्वामी जी, दिस इज द लास्ट टाइम, मे बी वो इंडिया से वापस नहीं आएंगे। तो सम ऑफ द डिसेबल्स वर वांटिंग कि इनिशिएशन हो जाए, एंड सम ऑफ द माताजीज वर आल्सो वांटिंग कि इनिशिएशन हो जाए, यंग 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 माताजीज। तो कुछ
तो कुछ लोगों के बीच पे प्रभुपाद इंडिया के लिए, एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले ही चैंटिंग कर रहे थे। तो ऐसे करके इंडिया में रहे, फिर इंडिया से वापस फिर सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने जो जगन्नाथ रथ यात्रा जो ऑर्गेनाइज होने वाला था वो उन्होंने अटेंड किया। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ वो, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया जगन्नाथ रथ यात्रा में। और पहली बार मतलब प्रभुपाद ने भी सक्सेस फील किया, हैप्पी फील किया कि उनका जो ड्रीम था कि बाहर कृष्णा को वेस्ट में लेके जाएंगे और इस तरह से लोग मतलब उसको वेलकम करेंगे, इस तरह से रिसीव करेंगे, कृष्णा को एक्सेप्ट करेंगे लोग। जगन्नाथ रथ यात्रा का फेस्टिवल बहुत अच्छा हुआ। देन व्हाट हैपेंस इज कि लोगों ने ये बात समझ के, जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स थे, जैसे ब्रह्मानंद प्रभु को सजेशन दिया गया और दूसरे डिसाइपल्स के थ्रू कि आप बॉस्टन में शिफ्ट हो जाइए, आप बॉस्टन में जाके प्रचार क्यों नहीं करते। दयानंद प्रभु को सजेशन दिया गया है कि आप लॉस लॉस एंजलिस में जाके प्रचार कीजिए। और तीन डिसाइपल कपल्स, श्याम सुंदर एंड मालती, गुरुदास एंड यमुना, एंड मुकुंदा एंड जानकी, these three disciple couples were personally selected by They were sent Prabhupada to, sorry, to go to London, I think so. yeah, to go to London. Yeah, to go to London. They were personally selected by Prabhupada. तो ऐसे करके बहुत सारी प्रीचिंग हो रही थी, बट प्रभुपाद वाज लाइक, एंड while he was in San Francisco, जो मंत्रा रॉक डांस के बाद जो 2.5 महीने वो रहे, फूड फॉर लाइफ हुआ, सब कुछ हुआ। तो एवरी नाइट लाइक प्रभुपाद यूज टू गो टू बेड बाय से 10 o'clock, एंड एवरी नाइट सिर्फ 2 घंटा सो के 1 a.m. इन द मिडनाइट प्रभुपाद उठ के डिक्टा फोन पे बुक्स रिकॉर्ड करने लगे, एंड ट्रांसलेशन वर्क एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो करने लगे, तो वो याद करते थे अपने रूम में बैठे बैठे कि ऐसे ही वृंदावन में भी ऐसे ही करता था मैं। बट वृंदावन में ही हैड टू राइट एवरीथिंग हाथ से। तो उन्होंने चैतन्य चरितमृत भी ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने भागवतम के भी कैंटोज और आगे लिखे उन्होंने। एंड 1940s में ही प्रभुपाद ने, बिटवीन 1937 टू 40, प्रभुपाद ने इंडिया में जब वो थे, लाइक उनके जो अर्ली डेज थे, प्री इस्कॉन ही, जो भगवत गीता का ट्रांसलेशन एंड कमेंट्री था वो कंप्लीट कर लिया था प्रभुपाद ने। बट उनका टाइपराइटर और उनके भगवत गीता के मैन्युस्क्रिप्ट चोरी हो गए थे। तो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में अगेन ही स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग and commenting on the Bhagavad Gita. Like this is in the first visit of San Francisco, जब भी वो ट्रांसलेशन वर्क करते थे, तो तभी उन्होंने स्टार्ट किया। एंड जब वो वृंदावन से वापस आए तो उन्होंने कीर्तानंद महाराज को बोला कि मैं जाऊंगा, आप यहीं रुको। ओके। तो सो मैनी लाइक, जब सैन फ्रांसिस्को से वृंदावन लेके आए और जब फिर वो सितंबर में वृंदावन से जाने लगे, तो कीर्तानंद महाराज को बोला कि आई विल गो बट यू हैव टू स्टे हियर। सो कीर्तानंद महाराज वाज लाइक, हाउ विल आई स्टे आपके एब्सेंस में, एंड दिस इज नॉट आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज बिकॉज हीट बहुत ज्यादा है, या सब चीजें बोली उनसे। तो वैसे ही हीट मैनेज नहीं हो रही थी, बट somehow he was managing, and he was also doing like personal services to Prabhupada and other things also. Achyutanand Prabhu and Kirtanand Prabhu were doing at that time. तो प्रभुपाद को ना बड़ी एक इच्छा थी कि एक अमेरिकन हाउस भी बनाएंगे वृंदावन में, जहाँ पे उनके जो वेस्ट से डिसाइपल्स है ना वो आके रहे, और जो इंडियन मतलब इंडियन लोग हैं उनको भी मिले, ये बात का प्रमाण मिले कि सनातन धर्म का और विशेष करके कृष्ण का, कृष्ण नाम का कितना अच्छा प्रचार हो सकता है बाहर भी। तो प्रभुपाद
वुड मेंशन वन थिंग, वो बहुत सोचते थे कि जब भी वो अपने डिसाइबल्स को संन्यास इनिशिएशन देते थे, तो बहुत यंग डिसाइबल्स थे। संन्यास इनिशिएशन बेसिकली हैपेंस आफ्टर द एज ऑफ 50, बट कीर्तानंद महाराज को बहुत यंग एज में उन्होंने संन्यास दे दिया। तो बहुत सारे डिसाइपल्स ना प्रभुपाद को बताते थे कि जो लोग आपसे दीक्षा लेते हैं और जो लोग मूवमेंट से आके जुड़ते हैं, कोई तो टिक जाते हैं, कोई ऐसे ही एज अ फ्लिंग लेते हैं, इस बात को सीरियसली नहीं लेते, एज अ टाइम पास लेते हैं, सीरियस कमिटमेंट नहीं होती। इनिशिएशन ले तो लेते हैं पर निभाते नहीं। फिर अगर बहुत सारे डिसाइपल्स ने ये भी रेकमेंड किया कि अगर आप इतनी जल्दी संन्यास दीक्षा दे देंगे तो मतलब आगे जाके फॉल डाउन भी हो सकता है। और बट प्रभुपाद यूज्ड टू ऑलवेज से कि ये रिस्क तो मुझे लेना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू प्रीच एंड स्प्रेड दिस मोमेंट लाइक वर्ल्ड वाइड। तो ये रिस्क तो मुझे लेना पड़ेगा, ये रिस्क मुझे लेना ही है, क्योंकि अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, और क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम है, इसीलिए ये रिस्क तो मुझे लेना ही है। तो वो इनिशिएशन भी देते थे और संन्यास दीक्षा भी कुछ डिसेबल्स को दिए। मीनवाइल इन लंदन क्या हुआ, लंदन में जो तीन डिवोटी कपल्स गए थे, उन्होंने काफी प्रीचिंग की एंड दे मेट जॉर्ज हैरिसन देयर। तो जॉर्ज हैरिसन का क्या था कि जॉर्ज हैरिसन पहले से ही थोड़ा रिलीजियस था। मतलब पहले से ही थोड़ा उसका इंक्लिनेशन था। फिर उसने जब वो प्रभुपाद से कनेक्ट किया, प्रभुपाद के साथ उसकी मीटिंग्स हुई, तो उसको प्रभुपाद बहुत जेन्युइन लगे। फिलॉसफी बहुत मतलब सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का जो प्रभुपाद का फिलॉसफी था, वो अच्छा लगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस के जो टीचिंग्स थे, वो जॉर्ज हैरिसन को अच्छे लगे। तो जॉर्ज हैरिसन उस टाइम पे एक बहुत बड़े द बीटल्स करके कोई म्यूजिशियंस होते थे, बहुत फेमस म्यूजिशियंस थे लंदन के। तो जॉर्ज हैरिसन ने कनेक्ट किया प्रभुपाद के साथ, और उसने बहुत सारे ऐसे सिंगल्स भी निकाले। इसमें से एक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत पॉपुलर सिंगल था, निकला था, उसका एल्बम निकला था, म्यूजिक एल्बम निकाला था हरे कृष्णा के ऊपर उसने। तो जॉर्ज हैरिसन ने ऐसे ही कनेक्ट किया कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ। फिर जॉर्ज हैरिसन ने प्रभुपाद को हेल्प किया भक्ति वेदांता मैनर को एक्वायर करने में। उसने प्रभुपाद को हेल्प किया भक्ति वेदांता मैनर को एक्वायर करने में, और वहां पे टेम्पल स्टैब्लिश करने में। फिर 1971 में जब प्रभुपाद बॉम्बे में थे, तो बॉम्बे में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, पंडाल प्रोग्राम किया बहुत बड़ा। और आई थिंक इट इज 1971, बिटवीन 1971 to 1973, because about the Bombay Pandal program, राधानाथ स्वामी महाराज की बायोग्राफी द जर्नी होम में भी मेंशन आता है कि राधानाथ स्वामी महाराज ने भी वो पंडाल प्रोग्राम अटेंड किया था। जब वो इंडिया पहुंचे और इंडिया में अलग अलग सेजेस से मिलने के बाद, साधुओं से मिलने के बाद, अलग अलग गुरुओं से मिलने के बाद, स्पिरिचुअल टीचर्स से मिलने के बाद, he finally attended one of the पंडाल programs of Prabhupada। तो उनको वहां पे बहुत अच्छा लगा, और उनका ये भी उन्होंने मेंशन किया है जर्नी होम में कि वन ऑफ द पंडाल प्रोग्राम्स उन्होंने बहुत नजदीक प्रभुपाद के बैठ के उन्होंने अटेंड किया, एंड ही वाज जस्ट सरप्राइज एंड mesmerized by Prabhupada's aura and the way Prabhupada spoke, and the way Prabhupada had conviction in Krishna। तो वो चीज राधानाथ स्वामी महाराज को भी बहुत यू नो
लगी लाइक जैसे एक मन में फेथ बैठ जाता है, ऐसा लगा राधानाथ स्वामी महाराज को भी। तो ड्यूरिंग द पंडाल प्रोग्राम्स ही बीच में कुछ ऐसा हुआ कि श्रीला प्रभुपाद स्टार्टेड थिंकिंग कि जो फर्स्ट सेंटर बना हमारा इस्कॉन 26 एवेन्यू लोअर ईस्ट साइड में बना, अब यहाँ पे एक अच्छी लोकेशन में बनना चाहिए, मुंबई में भी। तो सेंटर एक बनना चाहिए। तो उन्होंने सेंटर बनाने का सोचा जुहू में। एंड देन जुहू के टेम्पल की बहुत बड़ी स्टोरी है, जिसको मैं संक्षेप में बताऊंगी, समरी में भी बताऊंगी। तो जुहू का जो उधर हरे कृष्णा लैंड, जो अभी जुहू टेम्पल है मुंबई में, वो मिस्टर एन की प्रॉपर्टी थी। और मिस्टर एन और उनकी वाइफ, तो पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लैंड प्रभुपाद को मिलने की बात हो गई, ये सब हो गया। बट देन मिस्टर एन वाज समहाउ, वो देना वो वहां पे चाहते थे कि कुछ कमर्शियल बने, कुछ लाइक बिजनेस का जैसा कुछ बने। जितना मैंने पढ़ा है ये स्टोरी के बारे में, वो वहाँ कुछ कमर्शलाइज करना चाहते थे। वो इतना कीन नहीं थे प्रभुपाद को लैंड सेल करने के लिए। तो मिस्टर एन ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, लैंड एग्रीमेंट्स में चीट करने का ट्राई किया मिस्टर एन ने। एंड फिर एग्रीमेंट्स में चीट किया मिस्टर एन ने, लाइक ही सेंट अ ग्रुप ऑफ लाइक हुलिगन्स, डिसाइपल्स के पीछे गुंडे भेजे उन्होंने, मार तोड़ करने की कोशिश की प्रभुपाद के डिसाइपल्स के साथ, बहुत तरीके की कोशिश की। एंड एक चीज थी, ये मिस्टर एन का जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, ये जो लैंड को एक्वायर करने का जुहू टेम्पल का, तो वो कोर्ट तक चला गया। एंड प्रभुपाद यूज टू कम्युनिकेट, आई एम डिस्क्राइबिंग द स्टोरी इन वेरी crisp and like crisp manner, short and crisp manner. So Prabhupada used to communicate with his disciples via letters कि ये मिस्टर एन का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ऐसा हो, लेटर्स में लिखते थे डिसाइपल्स की, यहाँ पे ना ये पॉइंट हमारे थोड़ा वीक है या ये है। तो प्रभुपाद यूज टू टेल देम कि भागवत भागवतम से प्रीच करो, हमारा मैसेज कितना स्ट्रांग है, हमारा नीड कितना स्ट्रांग है इस लैंड के लिए, और ये लैंड हमारे लिए क्यों जरूरी है। और भागवतम से राइटियसनेस एंड लॉ का भी जो चीजें हैं, जो कोड है, वो सब कोर्ट रूम में जाके बोलो तो समटाइम्स द जज वाज आल्सो लाइक कि यहाँ पे प्रीचिंग चल रही है कि केस चल रहा है। बट जो डिसेबल्स का कन्विक्शन था प्रभुपाद के ऊपर और श्रीमद् भागवतम के ऊपर, और डिसेबल्स ने भी खुद मेंशन किया है कि श्रीमद् भागवतम के जो स्टेटमेंट्स थे वो इतने स्ट्रांग थे कि उनको बोलते बोलते हमें हमें लगने लगता था कि ये केस तो हम जीत ही जाएंगे, क्योंकि वो कृष्णा के ऊपर कृष्णा का हाथ पकड़ के वो अ, पकड़ के वो ये कर रहे थे, वो किसी इंसान के ऊपर निर्भर नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो मतलब जो लॉ बुक्स होती है, सब लीगल कंसल्टेशन सब हुआ, बट मेनली प्रभुपाद ने फोकस रखा कि जो भी आपको स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाएगा श्रीमद् भागवतम के अंदर, इफ यू रीड श्रीमद् भागवतम सिंसियरली, इफ यू स्टडी श्रीमद् भागवतम सिंसियरली, तो श्रीमद् भागवतम के अंदर देर आर all the topics which are found in the material studies, like श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो में प्रेगनेंसी के, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, प्रेगनेंसी साइकिल के 36 वीक्स जो होते हैं, उसमें उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है श्रीमद् भागवतम के अंदर। देर इज लाइक देर इज मेंशन ऑफ लाइक
mention of episodes from English literature. There is about, you will find things about psychology. साइकोलॉजी के बारे में बात की है, तो अगर किसी को मंडेन सब्जेक्ट मैटर्स पढ़ने का शौक है तो वो भी उसको भागवतम के अंदर मिल जाएंगे। तो ऐसे करके, तो लास्ट में क्या होता है, मिस्टर एन बहुत ट्रबल क्रिएट करते हैं, इन शॉर्ट, जूहू के लैंड एक्वायर करने के लिए। बट फाइनल हियरिंग से एक दिन पहले शायद मिस्टर एन को, ही सफर द हार्ट अटैक एंड मिस्टर एन लाइक लूजेस हिज लाइफ। ओके, तो मिस्टर एन की जो वाइफ होती है ना, वो समझ जाती है कि हमने बहुत ही जेन्युइन साधु को ट्रबल किया है, बहुत मतलब कोशिश की है हमने कि हमारा ये लैंड उनके हाथ में नहीं जाए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उनकी वाइफ ये चीज समझ जाती है एंड देन उनकी बहुत कुछ होता है। एंड देन अल्टीमेटली उनकी वाइफ प्रभुपाद को आके अपोलोजाइज करती है, लैंड उनको दे देती है। वो लैंड लाइक खरीद लेते हैं प्रॉपरली, जैसे लीगल एक तरीके से। तो इस तरीके के करके आई थिंक 1970s में ये लैंड प्रभुपाद को मिलता है। और आई थिंक दिस इज समवेयर बिटवीन, somewhere but not 71, this is somewhere between 72 and 74। क्योंकि ये जो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन जो है वो 1978 में कंप्लीट हुआ था। देन प्रभुपाद लेफ्ट द मटेरियल वर्ल्ड इन 1977। तो प्रभुपाद के डिसअपियरेंस के बाद 78 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और वहां पे टेम्पल जो है वो बना। अभी ये राधा रासबिहारी जी की डेटीज की भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो प्रभुपाद को जहां से भी मौका मिलता था ना, कि यहाँ से कुछ फंड रेज हो सकता है या प्रीचिंग के लिए कुछ हेल्प मिल सकती है, प्रिंटिंग के लिए, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या मतलब डेटीज के लिए कुछ भी। तो प्रभुपाद को ना, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द डिवोटीज, बट प्रभुपाद को किसने बोला कि हम आपके एक अच्छा डिवोटी फैमिली थी शायद, हाँ बॉम्बे में कोई फैमिली थी। तो उन्होंने बोला कि हम ना आपके उसके लिए डेटीज देना चाहते हैं, मतलब टेम्पल के लिए डेटीज देना चाहते हैं। तो आप ये डेटीज अपने टेम्पल में आप इसको स्टैब्लिश कीजिए और हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रभुपाद अपने एक डिसाइपल को लेके ना वो फैमिली के घर भी गए। और जब प्रभुपाद ने डेटीज को देखा तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए राधा रासबिहारी को जब देखा। बट प्रभुपाद ने एक चीज नोटिस की कि राधा रासबिहारी में राधा रानी का जो नाखून है ना, एक उंगली का नाखून थोड़ा सा चिप्ड ऑफ था। तो अभी अगर विग्रह में कुछ हो जाए तो ऐसे बोलते हैं कि खंडित विग्रह के या कुछ भी विग्रह में दूसरा भी कुछ हो तो पूजा नहीं करते। बट प्रभुपाद ने वो डेटीज एक्सेप्ट किए। और प्रभुपाद जहाँ मुंबई में जहाँ पंडाल प्रोग्राम के लिए अरेंजमेंट था वो सब था, तो वहां पे उन्होंने लाके डेटीज को रखा एंड उन्होंने डेटीज के सामने जाके ऐसे बोला कि माय डियर सर, राधा रास बिहारी को ऐसे बोला उन्होंने कि माय डियर सर, यू प्लीज स्टे हियर एंड वेरी सून आई शैल बिल्ड योर टेम्पल। तो ये जो राधा रास बिहारी मंदिर की जो स्टोरी है, ये गिरिराज स्वामी की जो बुक है आई बिल्ड योर टेम्पल, उसमें बहुत डिटेल में बताई गई है कि क्या हुआ, कैसे हुआ एंड किस तरीके से चीजें हुई। तो बहुत डिटेल में वो बुक में बताई गई है एंड दैट बुक इज वेरी इजीली अवेलेबल, पीडीएफ में भी अवेलेबल है शायद। तो डिटेल में जानने के लिए आप वो बुक भी पढ़ सकते हैं। फिर 1971 में ही लाइक मायापुर के लिए भी लैंड एक्वायर करना चाहते थे। आज भी जो टीओवीपी, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मायापुर का जो आज भी चल रहा है, वो उसके लिए लैंड एक्वायर
प्रभुपाद के एक डिसाइपल का लेटर आया था उनको कि 1971 में उनको मायापुर के टेम्पल के लिए लैंड मिल गया। एंड प्रभुपाद ने ये प्रोजेक्ट पूरा विजुलाइज किया था कि ये टेम्पल ऐसे ही बनेगा जैसे लाइक उसके रूफ टॉप पे पूरा ऐसे ही होगा जैसे जो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो का जो कवर है पूरा वैसे ही बनेगा। मतलब टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम पूरा ऐसे ही लगेगा कि वैदिक टाइम की सिटी में आ गए। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हुए प्रभुपाद के प्रभुपाद के टाइम, जो आफ्टर प्रभुपाद डिसअपियरेंस भी कंटिन्यू होते रहे। एंड देन 1975 में उनका एक बहुत ही बहुत ही प्रचलित इंदिरा गांधी के साथ एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें उन्होंने अपने मिशन अपने सक्सेस के बारे में बताया। एंड देन 1975 में आई थिंक सीनियर डिसेबल्स को लेके कुछ सन्यासी डिसेबल्स को लेके जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि गवर्निंग बॉडी कमीशन फॉर्म हुई। एंड प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक्स पे भी जाते थे। तो मॉर्निंग वॉक्स में भी वो हर एक चीज नेचर की हर एक चीज को कृष्णा से कनेक्ट करते थे कि कैसे आप नेचर की हर एक चीज में कृष्णा को देख सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था, मॉर्निंग वॉक्स भी स्टार्ट 1967 में हुए। तो 67 में क्या हुआ था कि प्रभुपाद की जब हेल्थ खराब हुई तो प्रभुपाद वाज लाइक रेस्ट, थोड़े हेल्थ खराब हुई उनकी। तो प्रभुपाद वाज लाइक रेस्टिंग इन हिज रूम एंड टेकिंग रेस्ट एंड द डिसाइपल्स वर टॉकिंग टू द फिजिशियन, डॉक्टर से बात कर रहे थे वो कि क्या है कैसे। तो डॉक्टर ने उनको बोला दैट गिवन उनकी जो प्रीवियस हार्ट कंडीशन रही है और जो अभी है, क्योंकि वो बहुत देर तक बैठ के ट्रांसलेशन का काम करते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर ने गुस्से में ऐसे आके सीधा बोला कि द स्वामी नीड्स टू वॉक। और ऐसा था कि प्रभुपाद ने वो कन्वर्सेशन सुन लिया कि उनको लगा कि मतलब अभी अगर मेरे को अपनी हेल्थ ठीक रखनी है तो आई हैव टू वॉक। तो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स उनको लगा कि अगर कृष्णा के मिशन में अच्छे से प्रचार करना है, सब कुछ करना है, तो मतलब कृष्णा के लिए मुझे लाइक सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, वॉकिंग भी जाना ही है। वॉकिंग इज अ मस्ट फॉर मी। तो इसीलिए मॉर्निंग वॉक स्टार्ट हुए प्रभुपाद के। तो मॉर्निंग वॉक्स में भी लाइक 6:30 AM इन द मॉर्निंग। तो एक बार एक ही किस्सा बताऊंगी मॉर्निंग वॉक का फटाफट। एक बार ऐसा हुआ कि मॉर्निंग वॉक पे थे प्रभुपाद, आई थिंक दिस इज समवेयर इन सैन फ्रांसिस्को। तो एक बार अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे थे तो उन्होंने एक बर्ड को बर्ड्स को देखा, कुछ लाइक ग्रुप ऑफ बर्ड्स था कि बर्ड नेस्ट था, पता नहीं क्या था। तो उसने बर्ड ने वहां पे ना लाइक जो बोलते ना ऐसा शिट करके रखा था बर्ड ने। तो प्रभुपाद ने बर्ड शिट की तरफ पॉइंट किया एंड प्रभुपाद ने बोला लाइक व्हाट कैन यू से फ्रॉम दिस, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो सारे डिसाइपल्स, आर यू देयर प्रभु जी? हरे Yes, I'm कृष्णा। here. Yeah, I'm या here. I'm here. I was just on तो mute. ओके। तो प्रभुपाद ने पूछा सब डिसाइपल्स को, तो सब डिसाइपल्स वर लाइक यू नो कोई सोच रहा होगा कि ये ये क्या मतलब शेड को देख के क्या सो- बोलेंगे हम लोग, या शेड का पैटर्न देख के पता नहीं स्वामी जी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल या कुछ अलग ही अलग लोग अपने अजम्पशन लगाने लगे या कुछ भी। तो प्रभुपाद ने बोला उनको कि ये देख के आपको क्या समझ में आता है कि कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई भी प्राणी अ, मतलब यहाँ पे ये प्राणी ना मतलब काफी टाइम से रह रहा है। तो कोई भी पशु पक्षी, कोई भी प्राणी, कुछ भी हो, तो सब लोग अपने जो घोंसला बनाते हैं, घर बनाते हैं, या जो भी उनकी ड्वेलिंग प्लेस होती है उससे उनको भी अटैचमेंट हो जाती है।
तो ये जो पक्षी है, ये शिट को देख के आई कैन टेल यू दिस कि ये पक्षी यहाँ काफी टाइम से रह रहे हैं, थोड़े टाइम से नहीं, काफी टाइम। तो प्रभुपाद लाइक हर एक चीज को कृष्णा से कनेक्ट करके और हर एक चीज से अटैचमेंट और डिटैचमेंट का डिफरेंस सिखा के, ऐसे मॉर्निंग वॉक्स पे उनकी ऐसी होती थी। तो इस तरीके से लाइक भक्ति वेदांता मैंने हुआ, जिसमें जॉर्ज हैरिसन ने बहुत हेल्प किया। देन प्रभुपाद लाइक नैरोबी भी जाते थे। नैरोबी, नैरोबी में उन्होंने सेंटर खोला। नैरोबी के जो डिसाइबल्स थे वो बहुत अच्छे से डेटी वर्शिप करते थे। तो नैरोबी एक बार गए तो प्रभुपाद सब एकदम स्पिक एंड स्पैन क्लीन टेम्पल देख के बहुत खुश हुए, और अच्छे से नो जैसे अच्छी डेटी वर्शिप देख के बहुत खुश हुए। तो उस टाइम पे क्या था कि प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स को क्लियरली बोला था कि राधा कृष्ण के विग्रह की, इन जनरली अपने सभी डिसाइपल्स को बोला था कि राधा कृष्ण के विग्रह की पूजा करने के लिए स्टैंडर्ड बहुत हाई होना चाहिए। तो मतलब स्टैंड उसके बाद उसको बहुत डिटेल में करना पड़ता है। लेकिन अगर आप जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा की पूजा करेंगे या गौर निताई की पूजा करेंगे, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है ना वर्शिप में, तो दे एक्सेप्ट इट। तो ऐसे करके प्रभुपाद ने एक एक चीज अपने डिसाइपल्स को समझाई, एंड एक एक चीज एक एक चीज के लिए उनको प्रोत्साहित किया कि जाओ प्रीचिंग करो, डेटी वर्शिप सिखाई, कुकिंग सिखाई। लॉस एंजलिस में भी प्रभुपाद जाते थे, वहां पे भी जन्माष्टमी सेलिब्रेट की। नेक्टर ऑफ डिवोशन के ऊपर उन्होंने क्लासेस लिए। एंड वृंदावन में भी एक जन्माष्टमी कीर्तानंद महाराज को सेलिब्रेशन दिखाया और सब चीजें की। तो ऐसे करते करते 75 में उन्होंने बोला कि नाउ आई एम एन ओल्ड मैन, मैं चाहता हूँ कि ये काम भी आगे भी इस्कॉन चलता रहे, और ये जो काम मैंने जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए, इट इज उनकी इच्छा उन्होंने एक्सप्रेस की अपने डिसेबल्स को कि इट इज वेरी लाइक कंज्यूमिंग फॉर मी, कि इतना हेक्टिक ट्रैवल और हर चीज को, अ, हर चीज के लिए बेसिकली उनके डिसाइपल्स जो उनके पास जाते थे, छोटी से छोटी चीज उनसे पूछते थे, तो वो चाहते थे कि वो, उनका एक ही था जो लास्ट के कपल ऑफ इयर्स थे, उसमें उनका एक ही था कि वो आराम से बैठ के ट्रांसलेशन का काम और कमेंटिंग का काम करें। और ये जो न्यूज सेंटर्स खोलने की जो लीगैलिटीज है, फॉर्मेलिटीज है, और सब जो न्यूज सेंटर्स की जिम्मेदारी है अभी, अ, जो डिसाइपल संभाले। तो सबको प्रभुपाद ने रिक्वेस्ट भी करते थे अपने डिसाइपल से कि बहुत कॉपरेशन से रहना और अच्छे से रहना। और लाइक एंड प्रभुपाद का एक बहुत हमेशा जब भी उनके डिसाइपल्स उनसे पूछते थे कि आप नहीं रहोगे तो हमारा क्या होगा, तो वो कहते थे कि आई शेल फॉर एवर लिव इन माई बुक्स एंड यू विल यूटिलाइज। तो आज भी अपनी किताबों के माध्यम से प्रभुपाद हमारे साथ भी है। तो ऐसे करके उन्होंने गवर्निंग बॉडी कमीशन स्टार्ट किया 1970s में। अ, एक और जगह बहुत प्रचार हुआ, वो रशिया में हुआ, मॉस्को में। मॉस्को में एक खुला टेम्पल खुला 1970s में। वहां पे प्रभुपाद ने जाके पर्सनली बहुत प्रचार किया मॉस्को रशिया में। और प्रोफेसर कोटोव्स्की से प्रभुपाद मिले वहां पे। वो कौन सी बुक है वो, एक सेकेंड, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, एक बुक निकाली गई है प्रभुपाद के। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में बेसिकली ऑन द टॉपिक्स ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग बहुत सारे प्रभुपाद के कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड किए गए हैं। तो उसमें आपको शायद वो कॉन्वर्सेशन मिल जाएगा, प्रोफेसर कोटोव्स्की वाला। तो
इन शॉर्ट प्रभुपाद ने लाइक डे इन एंड डे आउट इन द 10 ईयर लाइफ स्पैन, डे इन एंड डे आउट प्रभुपाद ने प्रीच किया। प्रभुपाद ने 108 टेम्पल्स खोले, सेंटर्स खोले। सो बेसिकली फिर लास्ट में उन्होंने अपने 77 के लास्ट में उन्होंने एक्सप्रेस किया दैट नाउ आई वांट टू गो बैक टू वृंदावन। तो उनको वृंदावन लेके गए और वृंदावन में वो कुछ टाइम रहे, बट देन इन राधा दामोदर मंदिर 14 नवंबर 1990 1977 7:30 p.m. लास्ट मोमेंट तक भी प्रभुपाद वाज लाइक एकदम एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ना, व्हेन ही वाज लाइक ऑन हिज डेथ बेड नहीं बोल सकते, व्हेन ही वाज ऑन द वे टू डिपार्ट फॉर गोलोक, इट इज डिस्क्राइब कि फिजिशियन आके डिसाइबल्स को बोलता है कि इट इज अम्यूजिंग टू सी कि कोई इतने पेन में है, कोई इतना एकदम स्किन तो दिख ही नहीं रही उनकी बॉडी पे, सिर्फ बोन्स ही बोन्स दिख रही है। स्किन एकदम बोन्स के साथ चिपक चुकी चुकी है और इतना पेन है उनकी बॉडी में, फिर भी उनके फेस पे एक ट्रांसेंडेंटल ग्लो है। एंड लाइक फॉर एंड मोमेंट तक वो अपने रूम में, लास्ट मिनट तक अपने रूम में अपने डिसेबल्स और वेल विशर्स और फॉलोअर्स के साथ, कीर्तन तो चालू था उस दिन उनके रूम में, बट लास्ट मोमेंट पे वो डिक्टाफोन पे वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। ही इज ट्रांसलेटिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ his manifest pastime in the material world. He is doing the translation work and the commentary work towards the last minute. Like that video is available on YouTube also. और मैंने एक दिन प्रभुपाद की समाधि का वीडियो भी देखा था, एंड आई वाज लिटरली लाइक आई वाज लाइक थोड़ा हिल गई थी मैं, क्योंकि YouTube पे ये सब वीडियोस अवेलेबल है। एंड आज का जो मैंने जो भी डिस्कशन किया है, ये प्रभुपाद लीलामृत से लेके मैंने इंटरनेट से भी थोड़ा लिया है, और प्रीवियस डिस्कशंस जो डिसाइपल्स की हुई है उसमें से भी मैंने लिया। एंड यूट्यूब पे कुछ स्टोरीज एंड पास टाइम्स सुन के मैंने लिया। बहुत सारे सीनियर डिसाइपल्स के एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे यूट्यूब पे। ये मैं रिसोर्सेस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हमने आज ये कथा समाप्त की है, संक्षेप में समाप्त की है। तो इसके बाद भी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए कुछ रिसोर्सेज होना चाहिए। तो आई एम जस्ट मेंशनिंग कि आई एम श्योर आपको पता होगा ये सब चीजों के बारे में, बट फिर भी आई एम मेंशनिंग दिस कि जो बाद में ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे जो लोग, तो वो भी ऐसे रिसोर्सेज से आगे कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। लीलामृत एंड प्रभुपाद से ना बहुत अजीब अजीब तरह के लोग मिलने आते थे। लाइक एक जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक व्यक्ति आया प्रभुपाद के पास कि आप तो बहुत कुछ कर सकते थे, इंद्र तृप्ति कर सकते थे, पर अगर आपको पता चला कि भगवान नहीं है तो वो वाली चीज मैंने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। Correct, अभी correct. अभी मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक ना बहुत दो ऐसी मैं स्टोरीज डिस्कस करना चाहती हूँ, शॉर्ट स्टोरी दी है। एक बार ना सैन फ्रांसिस्को के टेम्पल में अ, प्रभुपाद एक कीर्तन और क्लास कर रहे थे, जो मतलब रेगुलर सेंटर्स में जो रेगुलर एक्टिविटी होती है वो। तो एक बहुत ही इंटॉक्सिकेटेड बंदा आया और उठ के ऐसे लेक्चर में बोला, मुझे मुझे दीक्षा चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, आपको जरूर मिलेगी दीक्षा, बट आपको दो सवालों के उत्तर देना पड़ेगा। तो व्यक्ति ने नशे में प्रभुपाद को बोला कि ठीक है पूछो। तो प्रभुपाद ने उससे पूछा कि कृष्ण कौन है। तो व्यक्ति ने थोड़ा सोचा, फिर बोला कि कृष्ण भगवान है। तो फिर प्रभुपाद ने बोला बहुत अच्छा, अभी दूसरा सवाल का जवाब दो। तो बोला दूसरा सवाल क्या है, तो बोलते तो प्रभुपाद ने उसको पूछा आप कौन हो। तो व्यक्ति ने फिर थोड़ा सोचा,
तो वो व्यक्ति ने फिर जवाब दिया कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। तो भगवान बोले वेरी गुड, पास, आप परीक्षा में पास हो गए, कल के कल आपकी दीक्षा हुई। तो ऐसे करके प्रभुपाद को पता था कि लाइक कैसे शास्त्रों में लिखा है कि एक सन्यासी गुरु को बहुत सारे डिसाइपल्स नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर डिसाइपल्स का फॉल डाउन हो जाता है तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो भी रिएक्शन है, मिड में फॉल डाउन हो जाए अगर किसी डिसाइपल का, उसका रिएक्शन, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पिरिचुअल मास्टर के ऊपर आता है। तो बट ही ऑलवेज मेंशन कि बिकॉज ऑफ द अर्जेंसी of my mission and my movement, I need to like make more and more disciples to be able to preach this movement even after my preach and spread this movement even after my disappearance. तो इस वजह से उन्होंने बहुत सारे डिसाइपल्स भी एक्सेप्ट किए, और इस तरह से कोई भी अगर उनके पास आता था तो दीक्षा के लिए, तो उनको ये दो प्रश्न पूछते थे, और ये दो प्रश्न के जवाब अगर कोई सही देता था, जो भी दीक्षा का इच्छुक होता था आता था, सवाल का जवाब देता था, तो उसको प्रभुपाद दीक्षा देते थे ये दो सवाल का जवाब सुनने के बाद। दूसरी चीज है कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसे ही सैन फ्रांसिस्को में ही शायद प्रभुपाद 14 टाइम्स, लाइक 12 साल में प्रभुपाद ने राउंड द ग्लोब ग्लोब ट्रैवल किया, 14 टाइम्स ट्रैवल किया प्रभुपाद ने। और प्रभुपाद को अलग अलग तरीके के लोग मिलने आते थे। तो एक बंदा, आई डोंट नो वेयर बट समवेयर इन दी इस्कॉन टेम्पल सेंटर ओनली, एक व्यक्ति आया प्रभुपाद से मिलने, और उसने प्रभुपाद को बोला कि आपको पता है आप कृष्ण कृष्ण करते हो, पर आपको पता है भगवान तो मैं हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है, अब भगवान है। तो प्रभुपाद ने ना अपने डिसाइपल्स को बोला, ऐसे मतलब डिसाइपल तो समझ गए कि ऐसे व्यक्ति अजीब अजीब से आते रहते, अब तक तो उनको एक्सपीरियंस हो चुका था। तो प्रभुपाद ने ना उनको बोला डिसाइपल्स को कि आप इनको लेके जाओ और इनको अच्छे से प्रसादम खिलाओ। तो डिसाइपल्स ने वही किया, अच्छे से प्रसादम खिलाया। और थोड़ी देर वो टेम्पल में भी था, और वो मतलब अपनी चीजें कर रहा था अपने आप को, ही वाज बोस्टिंग हिमसेल्फ एंड मेरा ये है, मेरे पास वो पावर है, ये पावर है। और उसको फिर ना थोड़ा नेचर कॉल आ गया। तो उसको ना प्रभुपाद ने फिर बोला कि ठीक है, मतलब वो ना एकदम ऐसे उसको नेचर कॉल आ गया। तो फिर उसको वॉशरूम यूज करना था क्योंकि उसने अच्छे से प्रसादम खाया, डिवोटीज ने उसको बहुत अच्छे से किया। तो प्रभुपाद ने ना उसको रोका, बहुत देर तक उसको रोक के रखा, वॉशरूम नहीं जाने दिया। तो ऐसा ये कहानी, मतलब अभी तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, ये प्रॉपर कहानी आई डोंट रिमेम्बर कौन से लेक्चर में मैंने सुनी थी, बट किसी तो सीनियर डिवोटी के उससे ही मैंने सुनी थी। तो फिर उसको जाने नहीं दिया, तो वो ना एकदम ऐसे वो जो व्यक्ति था वो एकदम ऐसे ना परेशान हो गया कि प्लीज लेट मी यूज द वॉशरूम, लेट मी यूज द वॉशरूम। तो एट द एंड ऑफ दिस थिंग, जो प्रसंग हुआ, इसके एंड में प्रभुपाद ने बोला, जब वो बंदा वॉशरूम यूज करके बाहर आया, दैट यू कुड नॉट कंट्रोल सिंपल नेचर्स कॉल, ओके। और आप बोलते हो कि आप भगवान हो, व्हाट काइंड ऑफ लाइक गॉड आर यू? अगर आपसे नेचर्स कॉल कंट्रोल नहीं हुई तो आप क्या कंट्रोल कर लोगे? मतलब तो ऐसे करके प्रभुपाद के पास ऐसे लोग आते थे, बहुत सारे डिसाइपल्स के पेरेंट्स भी आते थे जो खुश होते थे। कई लोग खुश भी होते थे कि हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पे आ गए, नशे से हट के अच्छे रास्ते पे आ गए। कई लोग परेशान हो जाते थे कि स्वामी जी के इन्फ्लुएंस में आके हमारे बच्चे घर बार छोड़ रहे हैं, हमको छोड़ के जा रहे हैं। पर जब वो यहाँ पे आके देखते थे कि कि बच्चे अच्छे से रह रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, टेम्पल में उनको रहने की व्यवस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं, जेन्युइनली कोई कोई डिसाइपल बहुत जेन्युइनली प्रभुपाद के साथ सर्विस करता था, प्रभुपाद से बहुत कनेक्ट फील करता था, तो बहुत अच्छा लगता था पेरेंट्स को। तो इस तरह से बहुत सारे लोग आते थे, और रिपोर्टर्स भी आगे पूछते थे। एक रिपोर्टर ने पूछा कि
आप इतना आप कुछ काम नहीं करते, केवल हरे कृष्णा करते रहते हो। तो प्रभुपाद ने उनको जवाब दिया कि हम जितना काम करते हैं ना 24 घंटे में, उतना आप नहीं कर सकते, उतना आप नहीं कर सकते। और एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपका इतना एडवांस एज है, आप इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल क्यों करते हो? तो प्रभा ने उसको जवाब दिया कि आई एम ट्रैवलिंग लाइक कंटिन्यूसली अराउंड द ग्लोब, क्योंकि आपको 14 प्लानिटरी सिस्टम्स में ट्रैवल ना करना पड़े, इसलिए आई एम ट्रैवलिंग। एंड प्रभुपाद का एक बहुत विशेष चीज डिस्क्राइब करते हैं डिसाइपल्स, जो लीलामृत में भी लिखा है कि जिस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट लोग प्रभुपाद से मिलने आते थे, कोई सडनली प्रभुपाद की कथा में आके ट्रम्पेट बजाने लग जाता था, कोई कुछ करने लग जाता था, कोई ऐसे ही कहीं से भी आ जाता था। तो प्रभुपाद हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से डील करते थे। कुछ को निग्लेक्ट करते थे, कुछ के कुछ के प्रोपेंसिटीज को देखते थे कि इसके अंदर क्षमता है, तो उसको भले इंटॉक्सिकेटेड होता था इंसान, तो उसको वो कृष्ण की सेवा में लगा देते थे। उनके अंदर की अ, जो भी खामियां होती थी उसको डाइवर्ट करके कृष्ण की सेवा में लगा के गुण बना देते थे। तो ऐसे करके प्रभुपाद हर व्यक्ति से डील करते थे। तो एक बार प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में लेक्चर ले रहे थे, और एक लेक्चर लेने आने वाले थे टेम्पल सेंटर में। तो एक महिला बहुत ही भद्दे तरीके से ना डांस करी थी टेम्पल में। तो सब डिसाइपल्स देख रहे थे कि क्या है, पूरी नशे में है, भद्दे तरीके से शी इज डांसिंग लाइक विद सो मच ऑफ वल्गैरिटी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो सब रोकना चाहे कि प्रभुपाद नीचे आएंगे लेक्चर लेने, अभी क्लास लेने, तो देखेंगे क्या सोचेंगे। एंड प्रभुपाद ने मतलब बहुत सारे डिसेबल्स ने उनको थोड़ा डिले करने का भी ट्राई किया कि थोड़ी देर बाद आए नीचे। तो बट प्रभुपाद जब नीचे आके देखा, तो प्रभुपाद एकदम ऐसे मतलब ना कोई रिएक्शन नहीं दिया प्रभुपाद ने। तो फिर एक एक बट वो लेडी कंटिन्यूसली डांस कर रही थी, रुक नहीं रही थी, वो प्रभुपाद को भी देख के वो डांस करते जा रही थी। तो एक माता जी डिसाइबल थे प्रभुपाद के, वो फिर और प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला, बट एक माता जी डिसाइपल आगे आई और एक उसको लेके गई, अच्छे से बाहर लेके साड़ी वाड़ी पहना के उसको लाई। फिर उसने प्रभुपाद का बैठ के लेक्चर अटेंड किया वो लेडी ने, और प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम किया। तो इस तरीके के लोग वगैरह आते थे, सब लोग आते थे। एंड माई एंड हियर लाइक ये डिसअपियरेंस लीला भी मैंने बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है, बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड था। बट मैं यही कहना चाहूंगी कि ये इनिशिएटिव आई डोंट नो कितना सक्सेसफुल हुआ है, कितना सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट मैंने सक्सेस या फेलियर को कभी ध्यान नहीं दिया ये इनिशिएटिव करने में। और मेरा एक ही ये था कि जब मुझे ऐसा विचार आया कि गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे शिला प्रभुपाद के सर्विस में कुछ करना चाहिए, कृष्णा की सर्विस में कुछ करना चाहिए, तो मुझे लगा कि श्रीला प्रभुपाद के बारे में बात करना चाहिए। और आज भी इस्कॉन सेंटर्स में हम कई बार देखते हैं कि लोग कृष्णा के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, बट आई थिंक प्रभुपाद का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है, मतलब अनइमेजिनेबल कंट्रीब्यूशन है वो, इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई, वो ऐसा कंट्रीब्यूशन है प्रभुपाद का। तो फिर मुझे लगा कि वो उसको डिस्कस करना चाहिए। मैंने कितना अच्छे से कर पाई हूँ, कितना अच्छे से नहीं कर पाई वो मुझे नहीं पता, बट आज मैं इस कथा को विराम दूंगी। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ये पूरा इनिशिएटिव जो था, एक्चुअली 9 वीक्स का था, बट 12 वीक्स लग गए। तो फिर भी मैंने बहुत कंसाइज और कंडेंस तरीके से ट्राई टू डू इट। तो आपको अच्छा लगा होगा, आई एम श्योर है इससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा कृष्ण के साथ, और कनेक्शन फील होगा, और ज्यादा अट्रैक्शन होगा कृष्ण के प्रति, और ज्यादा यू नो
सबमिसिवनेस होगी। ये मेरी मेरी भी यही मंशा थी कि मेरी भी पर्सनली कृष्ण के प्रति सबमिसिवनेस इंक्रीज हो, और पर्सनली मेरी साधना भी इम्प्रूव हो, मेरे मन में कृष्ण के प्रति और प्रेम जागे। बस इसी मोटिव के साथ मैंने ये इनिशिएटिव लिया था। और अभी आज के बाद नेक्स्ट टाइम हम 19 अक्टूबर को सैटरडे से मिलेंगे, करेक्ट। 2:30 to 3:30। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, नो आप प्रॉब्लम। स्टार्ट से लेके एंड तक रहे हो। थैंक यू सो मच, दैट्स रियली नाइस ऑफ यू। एंड अगर आप कुछ कहना चाहो तो द फ्लोर इज ऑल योर्स। नहीं नहीं, आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू यू बिकॉज एटलीस्ट इस लीला अमृत के साथ में, और आपके जो आपका जो हार्ड वर्क है इस साथ में, एटलीस्ट आई एम एनफ motivated to somehow to read Srila Prabhupada book one day, like 1 hour a day. I'm like every day, like since this classes has started, I have not missed at least spending 1 hour reading or listening. And when I'm listening or reading, I'm not doing anything else. I'm just listening. I'm trying या to give my undivided attention. Of course, मन तो इधर उधर भागता ही है, but still, I'm not doing any work at that time. या So, and I hope I'll be able to read Srila Prabhupada's Leelamrit in this gap, right? So that I don't feel that gap, and इवन I'll आई know. विल लाइक, अभी तो मैंने सम अप किया, लाइक आज का टॉपिक ये सोचा था मैंने जब मैं Hmm. प्रिपेयर कर रही थी कि समरी ऑफ प्रभुपाद पास्ट टाइम्स। तो Hmm. ये टॉपिक ही मैंने ये सोचा था। तो मैं जब प्रिपेयर कर रही थी तो मेरी भी पूरी नहीं हुई लीलामृत, जो सोर्स मैं यूज कर रही थी। ऑफ कोर्स मैं सत स्वरूप महाराज की जो मैंने इनिशियली बुक्स दिखाई थी वो मैं रेफर कर रही, बट और Hmm. भी बहुत सारे सोर्सेज मैंने इसमें जो मेरे पास स्टोर थे यूज की। तो मेरी भी थोड़ी सी बाकी है लीलामृत और पढ़नी। तो मैं भी उसको कंटिन्यू करूंगी आने वाले 2 हफ्ते का जो गैप है। और इस बार 19 अक्टूबर से स्पेशली लाइक हम कृष्णा के पास टाइम्स पे फोकस करने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी जॉयफुल एंड वेरी रिलेशेबल हम सबके लिए। एंड एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी मैं फिर से फ्लायर्स को ग्रुप्स में डालने वाली हूँ, बट आप भी अ, अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को ऑन अ पर्सनल लेवल बताइए कि हम ऐसा एक इनिशिएटिव कर रहे हैं, दामोदर कथा Definitely. कर रहे हैं कृष्ण के बारे में। न्यू डिवोटीज, एग्जिस्टिंग डिवोटीज, डजेंट मैटर। आप भी पर्सनली प्लीज कीजिए उसको, मतलब और भी बढ़ाइए, तो जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना अच्छा लगेगा मुझे, और Correct. उतना ही Correct. कृष्ण को भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा स्वार्थ है मेरा कि मैं कृष्ण की प्रिय बन जाऊं। कहते हैं कि जो प्रचार कार्य में किसी भी रूप में सहायता करता है, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे प्रीचिंग हो, चाहे कथा हो, वो कृष्ण को प्रिय हो जाता है। तो मुझे भी कृष्ण का थोड़ा प्रिय बनना है, राधा रानी का थोड़ा प्रिय बनना है। इसलिए मैं हमेशा ही प्रीचिंग का करती रहूंगी किसी न किसी रूप में, कभी कथा तो कभी कुछ। तो बट लेकिन आपने भी बहुत मतलब सबसे ज्यादा आप ही ने दिखाया है, इंक्लिनेशन दिखाया है सुनने के लिए, और मुझे सपोर्ट किया, एनकरेज किया कंटिन्यू अटेंड करके। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई विल सी यू नाउ ऑन 19 अक्टूबर। Yeah. थैंक यू सो मच। Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्ण।